A very warm good evening, mascots. Can you all hear me and see me? Good evening, good evening. Wish you a very happy new year. First live session of the year. Wish you a very, very happy new year, mascots. God bless you. I had a beautiful, relaxing day out in the garden, nearly full day, just being with, my family and in the garden. It was an amazing, amazing day. I hope it was super duper awesome for you. And I know that you are energized and you are raring to, go. Wish you all a very happy new year, my dear children. God bless you, every single one. God bless all of us. And I know that now you're all very excited to work hard. New year, new energies, new zeal, new enthusiasm, new motivations. Yes, everybody's full on excited with that. Write a yes in the chat section, please. How many of you you feel renewed, you feel zealous, you feel energized, you feel very, very happy that ab tum us phod denge? Yes, ma'am. Right, with all that new energy. And if I tell you, agar aap aaj se bhi shuru karoge, even if you start today, you start now, I promise it you can crack NEET 2022. Before I move ahead, let me ask you one question. Name that teacher, not only in Vedantu, entire YouTube, who took a class on 31st December and 1st January and the class was live. I repeat my question. Name a teacher who teaches on YouTube. I'm not talking only about today. I'm talking about 31st December and 1st January. And that teacher took a live class. Yes, I can see children saying Neha ma'am. Okay, that she's a good friend of mine. Very nice. Yes. Now, if your teachers can work hard, festivals, New Year's, they can tell their family that wait for some time. If this family is equally important as the other family, will you now follow whatever I tell you? Only the serious aspirants stay back. The other aspirants, please go back. Only my serious aspirants stay back. If your teacher can work so hard, if your teacher treats you like family, right? We spend New Year's, we spend Christmas, we spend, Diwali with our family. I took a live session on Diwali also. I very clearly remember that. Will you follow every word that I'm going to tell you now? Every word. I have worked very hard to make this strategy lecture. You follow this strategy lecture with all your heart and I can promise it to you, you will see a lot of difference in your performance in just 1 week. In just 1 week, you will see a sea change in your performance. Sea change. Yes, and within no time your studies will come back on track. So let us do that. Wish you all a very happy new year, my dear kids. Happy new year. आज मैंने इंस्टा लाइव भी लेना था 6 बजे. सोच रही हूँ रात को 9 बजे थोड़ा लेट इंस्टा लाइव ले लो so that all of you जो कहीं घूमने फिरने भी गए होंगे, all those kids can also come back for our Insta live. So Vani for Vedantu's official Instagram account, please do join. And the book with NCERT 9 questions, NCERT based questions. This is the MCQ book. Theory sari padhte chalo. Just buy this book for MCQs and I promise it to you, आप देखना इसी book से NEET 2022 में सारे के सारे MCQs आएंगे. So make sure that you're liking, make sure that you're sharing, subscribing. Everybody just mark your attendance now. चलिए तो आगे बढ़ते गाइस. मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर सब्सक्राइब एवरीबॉडी. और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट कर दूं, 3 तारीख से जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, यू विल गेट माय क्लासेस. ये 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स है. तो जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, कॉन्सेप्ट्स वीक है, डाउट ज्यादा है. लास्ट ईयर भी बायो अच्छा हुआ था, बट लास्ट ईयर ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पुल्ड यू डाउन. जॉइन इट, इट विल चेंज योर लाइफ बिकॉज योर सिलेबस विल गेट ओवर इन 120 प्लस सेशंस. यू विल गेट 2020 टेस्ट. You will have all India rank test for rank improvement. You will have unlimited doubts. फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाउट्स की. आपको 20 टेस्ट के अलावा चैलेंजर टेस्ट, कंपैरेटिव रैंक एनालिसिस के लिए 10 और टेस्ट मिलेंगे. हर एक चीज के नोट्स मिलेंगे. बिना
के एंड में रिवाइज कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग, ऑल इंडिया रैंक 23, 92, 143 लास्ट ईयर फ्रॉम आवर क्रैश कोर्सेज। It's for 20,000, but with my code VD Pro आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी and the price will come down by 12,000 to sharp 8,000 rupees. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड क्रैश कोर्स के थ्रू आप नीट, एकलव्य और रैंकर्स बैच का पार्ट बन सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, now let us discuss your preparation, your strategy in detail. Is that clear? सबसे बड़ी बात क्या है? देखो बेटा, ये मत सोचना and let us start afresh. Next 20 minutes pinpoint attention, full focus. डन। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल ये मत सोचना कि मैंने आज से 15 घंटे पढ़ना। दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर जो न्यू ईयर के दिन लोग बनाएंगे। आप आज से अपना टाइम टेबल बनाओगे, बना लिया होगा, राइट यू ऑन द चैट सेक्शन, और टाइम टेबल में 12-12 घंटे की पढ़ाई की होगी, 15-15 घंटे की पढ़ाई की होगी। इसीलिए किया है ना, सबसे पहले सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक नहीं, इट विल बैकफायर। You first need to realize that studying for long hours is not something which is healthy. ना रिटेंशन होगी, ना मेमोरी में जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना है, राइट? द इफेक्टिव वे आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले आज से जो टाइम टेबल बनाओगे, कभी भी 1 आवर से ज्यादा नहीं बैठना है। 1 आवर के बाद जस्ट 5 to 7 मिनट्स की आप लोगों ने ब्रेक लेनी है। आपको अभी 5.5 to 6 मंथ्स तक पढ़ाई करनी है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स तो कम से कम है। अप टू 6 मंथ्स, आप 6 मंथ्स 10 आवर्स 12 आवर्स यू कांट स्टडी। आप शुरू कीजिए फ्रॉम 6 to 7 आवर्स। विद जस्ट अ फ्यू मंथ्स यू कैन नॉट गिव अप। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, क्रैक हो जाएगा एग्जाम। शेक्सपियर ने कहा था, ऑल थिंग्स आर रेडी फॉर माइंड। Therefore, अगर आपने सोचना है, मैं पहले आपको एक 100 डेज का टाइम टेबल दूंगी, 3 महीने में पूरा सिलेबस 11-12 का खत्म हो जाएगा और फिर 2 महीने हम बैठकर रिवाइज करेंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, दैट मींस मेंटली यू हैव गिवन अप। और जिस बच्चे को लगता है अगर मैं कर लूंगा, दैट मींस दैट पर्सन इज मेंटली स्टिल वर्किंग। ये कहने में बहुत छोटी बात लगती है, रिपीटेड बात लगती है, पर इससे बहुत फर्क पड़ता है। एग्जाम पास आ रहा है, आप लोगों ने 2-2 साल मेहनत की है। ड्रीमर्स, यू स्टडीड फॉर 3 years. Now don't have this feeling that I will not be able to do it. In fact, you should tell, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? मुझे एक सीट चाहिए, मेरा नाम है इज़रम सना, मुझे एक सीट चाहिए। I will become Dr. इज़रम सना this year, right? I will become Dr. 𝐂𝐐�𝐤𝐿, I know you worked hard for 2.5 years. Now you will not give up. It is very easy to give up. It is very easy to feel demotivated. It is very easy to feel that I will not be able to crack the exam this year. But when you're mentally thinking that I will, trust me, जो बच्चे इस साल टॉप करेंगे उनको भी सेल्फ डाउट हो रहा होगा। जो बच्चे इस साल टॉप करेंगे वो भी, they are also in the same boat as you. So you have to affirm that I will be able to do it. You have to focus a lot on self study. You have to make a very nice timetable. How? Let us see that. It is so important. That is why I wanted to do this on 1st Jan. मेरा भी मन कर रहा था छुट्टी लेने का एक दिन, to just put my feet up and relax, but I was like, no, the children need me. 10 must do things. मैंने सिर्फ 100 days का टाइम टेबल बनाया है। Jan, Feb, March, roughly March 10 तक। उसके बाद 2 महीने मैं आपको कंप्लीट रिवीजन प्लान करने का टाइम देने वाली हूं। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपको पता है 5 महीने तो है, फ्यू डेज, ऐसा नहीं हमारे पास 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है। सबसे पहले बताओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वर्क हार्ड करने की जरूरत है। I am sure 90% of you will say physics. कितना टाइम लगेगा? Your bio is my responsibility. That is why I am telling you कि क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर खुद से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी, एटलीस्ट somebody will be there. इसको आपको कितना टाइम चाहिए, क्या आपको और देखो बेटा, दिस
Vani Ma'am cannot make for you because this is an individual thing. You will have to do it. इसको, are you trying to do it 4 times per week? Are you trying to do it daily or 5 times a week? You decide it and calculate the time. Some of you in 1 hour are just able to do 6 or 7 MCQs. Raise your hands. How many of you still are able to do just 7-8 MCQs in 1 hour? You calculate the time, because minimum in one chapter try to do at least 50 questions. So if you are able to do just 6 or 7 MCQs in 1 hour, you need to calculate the time and accordingly prepare a good timetable. I will suggest that every day morning time start giving 3 hours to this subject of physics, minimum 4 days a week. That is my suggestion to you, right? I will give you 3 suggestions for it. Suggestion number 1, every day morning time 3 hours. Suggestion number 2, start solving previous year questions. Suggestion number 3, every week जो भी फिजिक्स में किया है उसका एक टेस्ट देना शुरू करो. So morning 3 hours physics को दो. Number 2 suggestion, previous year question solve करो, ज़्यादा book solve मत करो. Number 3 suggestion, every week give a test. सबसे पहले calculate करो time of the topics that you have to work hard. Human physiology का time calculate मत करो, वो आपका easy subject है, end में भी हो जाएगा. Difficult subject end में will become a burden for you. Is that clear? Okay, now you have to act smart. What do I mean by acting smart? In acting smart, you have to identify your weak spots and you need to polish your weak spots. How many of you in last year also when you attempted were able to solve 65 to 70% of the paper? जो 30% पेपर था वो आपकी धजिया उड़ा के चला गया. Write you on the chat section please. 65-70% पेपर कर लिया पर 30% पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी धजिया उड़ाकर चला गया. Tell me you on the chat section for how many of you this thing happened. I'm 100% sure. I'm not able to read the comments, my dear children. 55, 60, 65% पेपर कर लिया, 35, 40 पेपर बैंड बजा के चला गया. Why? Because you did not identify your weak spots. हो सकता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको कुछ भी नहीं आता. That is why your overall merit fell down. Even in NEET 2022, I'm sure it happens that some topics you just don't know anything. You keep working. आप हमेशा जब रिविजन स्टार्ट करते हो आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक से रिविजन स्टार्ट कर देते हो. You never come to your weak topics, because of which your strong topics remain strong, but your weak topics keep getting weaker. Freshers, listen to me. How many of you, there are some topics of class 11 which you have not done? Freshers 2022, listen to me. How many of you still there are some topics? Is that clear? This is for freshers only, beta achiever. Yes? Okay, understood. How many of you 11? So what you need to do is, in your timetable, now is the time that you must start giving tests. सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा. 22 फ्रेशर्स हो या ड्रॉपर्स हो, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा. स्टार्ट गिविंग टेस्ट. व्हेन यू गिव योर टेस्ट you do get a reality check. Is that clear? Yes, you do get a reality check. This reality check will tell you what are your weak topics, and then you have to polish your weak topics. This is work smartly. जब तक आप फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दोगे आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं. They will remain hidden under the cover of the strong topics and you will continue to suffer in your examinations. Am I clear, everybody? Am I clear? This is one very important step number 2. You have to work smartly. In your timetable, you have to give as many tests as you can. Now, very important third tip. Study the toughest subjects such as physics and chemistry in the morning hours. Every day, alternate करना है.
ऑल्टरनेट करो, एक दिन फिजिक्स करो, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री करो, ऑर्गेनिक रात को करो बायो के साथ। यू हैव टू चूज द टफेस्ट सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डे टाइम। मॉर्निंग उठते हो, बायो की बुक पढ़ते हो। हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस ब्लंडर? राइट यू ऑन द चैट सेक्शन। आई नो दिस। सुबह उठते ही बायो की बुक लेके रजाई में बैठ जाते हो, नहीं चाय पीते हो, बायो की बुक पढ़ते हो। बिगेस्ट ब्लंडर। इफ यू कंटिन्यू टू डू इट फ्रॉम Jan 1, you will not get a seat. You have to get up, wash your feet, sit on a table and solve numericals. You don't do numericals. सुबह उठते हो, आराम से गरम गरम चाय पीते हो, बायो की बुक ऐसे खोल के सामने रीडिंग करना शुरू कर देते हो, नहीं होगा। Different are for different subjects. For biology and organic chemistry, you can study during night time. For physical chemistry and physics, you need to study for morning time. Strategy, सब कुछ रीड करते हो। How many of you do it? फिजिक्स भी बायो की तरह पढ़ते हो, फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह। Yes or no? Vani Ma'am knows you बोलोगे मैम how do you get inside our head? Ma'am has been teaching for 12 years. Ma'am will automatically get inside your head. Right? सारी फिजिक्स को रीड नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। राइट? फिजिकल केमिस्ट्री को रीड नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं। तो जो ओवरकम, जो फियर है, वो ओवरकम तभी होगा जब एवरी सब्जेक्ट यू विल डू इट द वे यू हैव टू डू इट। यस एवरीबडी, डोंट वरी बेटा, आप अभी 12th बोर्ड टर्म 2 पे फोकस करो बेटा। जो टर्म 2 का सिलेबस है उसी को नीट लेवल पे करो। नेक्स्ट वीक आई विल स्टार्ट अ बैकलॉग सीरीज फॉर क्लास 12th। आपके 11th के बैकलॉग खत्म हो जाएंगे। सो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट मटेरियल। अगेन, हाउ मेनी ऑफ यू इन योर क्लास 11th फ्रेशर्स, आपको प्रॉब्लम हुई थी, ड्रॉपर्स आपको 11th और 12th में प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज यू हैड अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल। ऐसा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है जो आपने ज्वाइन नहीं किया, ऐसे कोई नोट्स नहीं है जो आपने ज्वाइन नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एटलीस्ट 20 डिफरेंट टेलीग्राम मटेरियल? प्लीज रेज योर हैंड। Raise your hand. Listen to me very careful. Every word that I'm telling in this strategy is very important. सच बता दो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक हार्ट बना दो। कम से कम 20 टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट हो। 20 टेलीग्राम ग्रुप से 20 मटेरियल डाउनलोड करके रखा है। पीडीएफ के पीडीएफ फोन है, फोन की मेमोरी भर गई है, ना वो मटेरियल आज तक पढ़ा है, ना वो मटेरियल वो देखकर फोमो हो जाता है, हाय इसके नोट, उसके नोट, ऐसे नोट, वैसे नोट, फ्री के नोट, पेड नोट, ये नोट, वो नोट नहीं करना। एक बुक ले लो बायो में एनसीईआरटी, और अगर वानी मैम की जो एमसीक्यू की बुक आ रही है वो कर लोगे। 360 ऑन 360 100% गारंटीड है। मैंने एनसीईआरटी के ऊपर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आप देख लेना। मत करो ये, एनसीईआरटी बुक ले लो, उसके अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक सॉल्व कर लो, फिनिश। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। यू डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल। बस जो बुक्स आपकी प्रिस्क्राइब्ड है एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर पहले ये करो, बाकी सारे स्टडी मटेरियल को एक डब्बे में डाल के आज बाहर रखा हो, दूसरे रूम में डाल दो, नानी दादी चाचा चाची ताया ताई कहीं। प्लीज ये सारा अपना मटेरियल अपने फोन से हटा दो, वो टेलीग्राम ग्रुप एग्जिट कर दो। सारा दिन नोटिफिकेशन आती रहेंगी, टाइम पास होता रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी। 1 जनवरी से प्रॉपर स्टडी मटेरियल, जो प्रॉपर एक एनसीईआरटी का मटेरियल है और प्रीवियस ईयर बुक्स है, वो करो। ज्वाइन अ कोचिंग, प्रेफरेबली ऑनलाइन। कभी ओमिक्रॉन हो गया, टीचर को ओमिक्रॉन हो गया, बाजू वाले को हो गया, ये हो गया, डर लग गया, अपने को आइसोलेट कर लो, अपने को घर में आइसोलेट कर लो, प्रेफरेबली ऑनलाइन। ओमिक्रॉन भी आ रहे हैं, आगे आपकी चॉइस है, आपने जहां पैसा दिया हुआ है वो ठीक है, राइट? जहां आपने पैसा दिया, जितना पैसा दिया, दैट इज फाइन, बट यू नीड अ कोचिंग। कोचिंग आपको 3 रीजंस के लिए चाहिए, सिर्फ 3 रीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के किसी का सिलेक्शन नहीं होता, 100% होता है। सबसे पहले कोचिंग में दोगे टेस्ट, खुद नहीं दोगे मेरी गारंटी है। पैसे दिए होंगे तो दोगे, पैसे होंगे तो जिम में जाओगे, पैसे नहीं दोगे तो जिम में नहीं जाओगे। पैसे दिए होंगे तो गंदा खाना भी खाओगे, बोलोगे हाँ ठीक है क्योंकि पैसे दिए होटल में। टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, बिना टेस्टिंग के जो बच्चा जा रहा है 99.9% उसका रैंक नहीं आएगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चलेगी, वीक टॉपिक्स नहीं पता चलेंगे, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो डर ही लग जाएगा उसे। दूसरा, कोचिंग में आपके होंगे डाउट्स क्लियर।
डाउट्स क्लियर। बिना डाउट क्लियरिंग के बहुत मुश्किल है एग्जाम लेना, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री इतने टफ सब्जेक्ट्स हैं, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तीसरा है फियर। 4 बच्चों को देखोगे, डर लगेगा तो पढ़ाई करोगे तो रूटीन बनेगी तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। घर में बैठे रहोगे तो बिल्कुल घर के मेंढक की तरह, कुएं के मेंढक की तरह फील करोगे कि चलो चल रहा है, चलने दो। सो इट इज सो इंपॉर्टेंट, सिर्फ 3 रीजंस के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डाउट्स। और वेदांतों के जो टेस्ट होते हैं, अगर आप देख लो कि उनका एनालिसिस कैसा होता है, एक क्वेश्चन बताया जाता है, +1 इसमें, -1 इसमें, -1 इसलिए हो क्योंकि ये गलती की थी। तो टेस्टिंग, डाउट और वो एक डर, वो फियर, साइकोसिस कि यार वो मेरे से आगे निकल गया, जेलसी, कॉम्पिटिटिव फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसको देख के स्टडी करोगे, रूटीन बनेगी। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। वरना यूट्यूब पे पढ़ते रहोगे, कभी टाइम पास करोगे, कभी यूट्यूब की जगह कुछ और देखना शुरू कर दोगे, बीच में कोई और लेक्चर आ जाएगा। तो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली ज्वाइन अ कोचिंग फॉर दीज 3 रीजंस। राइट? सारे चैनल्स, सारी एप्स आज बंद कर दो। आज 1 तारीख है, आज तो सोच लो अब मेरी ऐप उस दिन डाउनलोड होगी जिस दिन मैं वानी मैम को इंस्टा स्टोरी पे टैग करूंगी, मैम मैं एम्स क्लियर करके बैठी हूं, या मैम मेरा मैम से क्लियर हो गया। उसी दिन मैं वानी मैम को इंस्टा स्टोरी पे टैग करूंगी मैम को। उससे पहले आज मैं अपनी सारी एप्स बंद करने वाली हूं। YouTube पे मेरे पास कोई चैनल नहीं होगा, मैंने किसी को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सबको ब्लॉक कर दूंगी। 1 या 2 चैनल जो मेरे पढ़ाई वाले हैं, बस मैं वहां। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई ऐप नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ YouTube पे मेरे पास 3-4 चैनल हैं जिन पे मैं पढ़ाई करती हूं। खत्म। जब मेरा लेक्चर हो गया, लाइव सेशन में लगाती हूँ, लेक्चर हो गया, फोन स्विच ऑफ करके मैं मम्मी को पकड़ा देती हूँ। राइट? द इंटरनेट इज अ वेरी पावरफुल टूल। इट कैन आइदर हेल्प यू। हजारों ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किए हुए टेलीग्राम पे, उनको छोड़ दूंगी। वानी मैम का पर्सनल टेलीग्राम आईडी मेरे पास है, डाउट होगा पूछ लूंगी। ये जो इतना ग्रुप, उसका चिट चैट ग्रुप, ये चिट चैट ग्रुप, वो गप्पे ग्रुप, ये फलान ग्रुप, वो धमकान ग्रुप, सारे ग्रुपों से मैं एग्जिट होने वाला हूं और मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई करने वाला हूं। डन? लास्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनो। अगर सच में बायोटोनियन हो और अगर इस लेक्चर का इतना भी फर्क पड़े, कल का संडे छोड़ के प्रॉमिस कर लो अपने आप से, अगले संडे को मैंने मॉक टेस्ट देना है। सिलेबस कभी खत्म नहीं होता जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे। जब 300 आएंगे ना मॉक टेस्ट में, तो यहां दर्द होगी। जब यहां दर्द होगी ना, क्योंकि 300 आए मॉक टेस्ट में, तभी पढ़ाई होगी। मन में हमेशा, मन तो बहाने देगा। द मन विल ऑलवेज गिव यू बहाना। चलो छोड़ो, क्या मॉक टेस्ट देना, अरे रहने दो, चलो नहीं। लिखो मुझे प्रॉमिस। आज मुझे मेन कमेंट सेक्शन पे बताओ, आज तक कितने मॉक टेस्ट दिए? 5 से ज्यादा अगर किसी बच्चे ने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, क्रैश कोर्स मैं स्पॉन्सर कराऊंगी फ्री में, मैं बताऊंगी, मैं दूंगी क्रैश कोर्स। राइट? नहीं दिए होंगे। हर एक फुल सिलेबस दो तरह के मॉक टेस्ट दो। राइट? जिस बच्चे ने 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट खुद दिए ना, प्रीतु मैं दिलवाऊंगी तुम्हें क्रैश कोर्स, बता रही हूं मैं। क्रैश कोर्स में 30 मॉक टेस्ट होंगे, 20 नॉर्मल और फिर वो ऑल इंडिया प्रेडिक्शन वाले। टेस्ट दो, फुल सिलेबस दो, हफ्ते में जो पढ़ाया है उसका टेस्ट दो, चैप्टर वाइज दो, टॉपिक वाइज दो। राइट? कॉन्फिडेंस इसी से बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट इसी से आएगी, पेपर हर बार जिनका छूटता है, स्पीड इसी से आएगी। जो बच्चे कहते हैं ना मैम स्पीड नहीं बढ़ रही, बेटा मॉक टेस्ट से बढ़ेगी स्पीड। अगर नहीं दिए गियन, 2 मॉक टेस्ट, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दो। किसका वेट कर रहे हो? बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो मॉक टेस्ट के लिए, तो कहां से रैंक आएगी? अगर टॉपर्स को देखोगे, टॉपर्स रिलीजियसली रेगुलरली मॉक टेस्ट देते हैं। राइट? 12th में जो हो, अगर आपको मैं बोलूं कि 1 महीने की पढ़ाई 700 रुपए में हो रही है, मानोगे? सारे लाइव कोर्सेज, ये जो माइक्रो कोर्सेज होते हैं ना, हजारों क्लास में माइक्रो, इसको डाउनलोड कर लो, बाद में देख लेना, अंदर की बात बता रही हूं। गो सी देम। हजारों, 10,000 MCQs, मॉक टेस्ट, 20+ टीचर्स, 5,000+ लाइव MCQs एंड 500, 750 में नहीं, 500 रुपए का
कल वो खत्म हो जाएगा ऑफर, गो टुडे इवनिंग, बाय इट एंड यूज द कोड VD Pro. व्हाट्स द कोड ब्रो? क्रैश कोर्स जो भी लेना है VD Pro. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट इग्नोर योर हेल्थ. चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पढ़ रहे, कुछ हो जाएगा, क्या फायदा? लास्ट ईयर कितने बच्चे थे, लास्ट टाइम पे कुछ कोरोना हो गया, लास्ट टाइम पे चोट लग गई. नहीं बेटा, हेल्थ इज वेरी, हेल्थ होगी तो 3-4 घंटे सिटिंग लगाओगे, अच्छे से खाओ. डोंट ईट अननेसेसरी फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड. पता है वो अच्छा नहीं, क्यों खाना? जस्ट बिफोर योर प्रिपरेशन 6 महीने बिल्कुल, मतलब सिर्फ पढ़ाई का सोचो और किसी चीज पे ध्यान मत दो. 6 घंटे रोज सोना है. सारी एप्स को, क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक लगता. अरे यार, जो दिख रहे हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. पता है कि नहीं पता? ये क्या वो देश सेवा कर रहे हैं? कौन सा यूट्यूबर बताओ जरा, बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़ा है, देश की सेवा कर रहा है कोई? यस, बताइए कौन सा यूट्यूबर ऐसा है कि वो आज बॉर्डर पे गया हो, यार अब तो मैं देश सेवा में, मैं तो लोगों का जन कल्याण में विश्वास रखता हूं. बताओ. और कौन सा, मुझे बताओ, ऐसा वीडियो है जो देखकर आपको बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? बेटा आज का लेक्चर ना थोड़ा सीरियस वाला लेक्चर है. कौन सा ऐसा लेक्चर, कौन सा ऐसा मोटिवेशन वीडियो देख लोगे, कौन सा फैक्ट देख लोगे? भाई अगर वो फैक्ट आपको नहीं पता होता तो आपका जीना का कोई फायदा ही नहीं था, कोई लाइफ में कोई मतलब ही नहीं था. अगर वो मोटिवेशन आप ना देखते तो आपने जन्म किस लिए लिया? बताओ. है? और कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो आपकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर देगा? बताओ. आपके घर में अगर कल को खाना नहीं है, कौन आपके घर में खाना डाल देगा? बताओ. कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो. ये सब ऐसे टाइम पास है. फिजिक्स और केमिस्ट्री को 3 घंटा आज से देना शुरू कर दो, अपने आप 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा. मॉक टेस्ट डेली फॉर द रिमेनिंग टाइम. डेली भी मॉक टेस्ट. आज किया है फिजिक्स के इतना टॉपिक पढ़ लिया 15 मिनट में, 5 MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता 3 घंटे का मॉक टेस्ट, वो गलत सोच रहे हो आप. 15 क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे, आप क्वेश्चन कैसे करते हो? अटक गए, खोलो किताब? नहीं, उसको टेस्ट की तरह दो, टेस्ट की कंडीशंस पे दो, एंड अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करो. ये नहीं पेपर दिया चलो घूमने चले, चलो पानी पूरी पार्टी करके आए. एनालाइज करो. अनअचीवेबल नहीं है. अगर 100 दिन में जो मैंने बोला है वो करोगे आज से, आपको अगले कुछ दिनों में रिजल्ट नजर आएगा. कोई टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता. अपने आप को चैलेंज करना शुरू करो. अपने आप को पूछो कि आज आपने जो किया, वॉज इट वर्थ इट? डिड यू बिहेव लाइक अ गुड चाइल्ड टुडे, कि आज भी टाइम पास किया? आज से चेंज हो, 1 by 1 चेंज, टर्न ओवर अ न्यू लीफ. प्रायोरिटाइज करो अपने टॉपिक्स को. नीट 2021 वालों ने जो मिस्टेक की थी, किन टॉपिक्स में मिस्टेक की थी? कौन से डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स थे? किन किन टॉपिक में मिस्टेक की? हर एक टॉपिक को मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट में डालो. सबसे पहले डिफिकल्ट उठाओ. हर एक सब्जेक्ट की आज लिस्ट बनाओ, ये मॉडरेट है, ये इजी है, डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाओ, मॉडरेट टॉपिक्स को नहीं उठाना. ऐसे प्रायोरिटाइज करो. राइट? सारे 2021 की ड्रॉपर स्पेशल कर रही हूं. हाई वेटेज लेस डिफिकल्टी लास्ट में करना. हाई वेटेज हाई डिफिकल्टी सबसे पहले ये करो. फिर ये करो. लेस वेटेज लेस डिफिकल्टी लास्ट में करना. लेस वेटेज हाई डिफिकल्टी ये करो. 1 2 3 4. हर एक टॉपिक को स्मार्टली प्लान करो. राइट? 700 मार्क्स अगर चाहिए तो 180 में से 160 करेक्ट होने चाहिए, तब आएंगे 700 नंबर. नेगेटिव मार्क्स एक भी नहीं करना. टेस्ट जितने दोगे उतने मन को बोलो मैंने नेगेटिव नहीं करना, वरना एग्जाम में नेगेटिव करोगे. इसीलिए मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए. उतने ही क्वेश्चन आंसर करने जो आते हैं. राइट? स्टेप 2, कैंडिडेट शुड बी वेल अवेयर अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ 3 सब्जेक्ट. बायो थियोरेटिकल है तो इतना टाइम नहीं चाहिए, कर लोगे. अगर मेरे एमसीक्यू बुक सॉल्व करोगे 100% 360 और 360 लाओगे. बायो की एनसीईआरटी से वेल वर्स्ड हो जाओ. हर एक टॉपिक को रिवाइज करो. आराम से डबल डिजिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे.
फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड होती है, नोट्स बनाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया तो नीट 2020 में नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्निंग बेस्ड होती है, उसके 3 या 4 रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, केमिकल रिएक्शंस उनके नाम आराम से बाय हार्ट करो। पीरियोडिक टेबल इज द की टू सक्सेस इन योर chemistry. Physics is rather tough. Most of the questions are formula based. इसलिए यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, toughest part of the exam. Yes, formula based अच्छे से पढ़ो, अपने MCQs maximum solve करो, flow charts बनाओ, अपने टॉपिक्स अपना टाइम डिवाइड करो, ये डिफिकल्ट टॉपिक, ये इजी टॉपिक, ये वाला जो टाइम है वो मेजर पोर्शंस के लिए, माइनर स्टडी ये छोटा मोटा टॉपिक है, इसको मैं शाम को रात को सोते हुए पढ़ूंगा। एंड स्टडी टू स्कोर, टाइम टेबल को फॉलो करो। कुछ होती है सेल्फ टॉट लर्निंग, जो लर्न करनी है, जो सॉल्व करनी है। कुछ होती है कोचिंग, समझ ही नहीं आया, अगर 60% 70% सिलेबस इधर लाई करता है, यार ये तो आता ही नहीं है, कर लिया है। जिन बच्चों ने कोचिंग ज्वाइन की थी, जिनको आता है, वो सेल्फ टॉट लर्निंग कर सकते हैं। समझो इसके बीच में डिफरेंस। सेल्फ टॉट लर्निंग तब होगी जब आता है, व्हेन यू अंडरस्टूड इट। समझो डिफरेंस, When you have to solve, जब आता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, तो फिर तो उसके लिए कोचिंग चाहिए ना। somebody will be there to teach you, then you need that. And remember, pro membership for 13th, everything we have started, pro membership तो 1000 रुपीज की अवेलेबल है 13th के बैच के लिए। पर 2022 इस टाइम पे अगर आपको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, 1000 रुपीज वाले इस 1 महीने के कोर्स के पीछे मत पड़ो। 6 महीने वाला कोर्स जो है, which I will tell you, राइट, ये देखो ऐसे बना, मैं आपको इसके बारे में बता, ये देखो, टॉपिक्स यू फाइंड डिफिकल्ट, टॉपिक्स यू आर वेल वर्स्ड विद, टॉपिक्स यू नो, यू डू नॉट नो। इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो टेस्ट देकर, राइट। डिफिकल्टी लेवल देखो पहले क्वेश्चन का, वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो बेटा, ये कोई नहीं कर सकता, आपको खुद वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, तब आपके शॉर्ट मार्क्स आएंगे। वरना ये जो है ना, आपको लगता है, आपको पता नहीं आता, यहां पे जो रह जाता है ये ही आइडेंटिफाई करना है। आया समझ में? Are you getting my book? My book will be out in the next 10 days. अब मैं आपको आज जाने से पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज देती हूं, दैट इज दिस गाइस, गो गेट द क्रैश कोर्स। स्पेशली अगर आपकी सेल्फ लर्निंग नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो आपको इसकी जरूरत है। आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको इसकी जरूरत है। आपको पता ही नहीं है पढ़ूं कैसे, तो आपको इसकी जरूरत है। 3 जैन को शुरू हो जाएगा, मेरे बैचेस तो शायद फुल हो भी चुके हैं, राइट। आज या कल सिर्फ लास्ट दिन है, क्योंकि 3 जैन को तो ये स्टार्ट हो जाएगा बेटा। 31 मई 2020 120 लाइव सेशंस, पीसीबी, पूरा सिलेबस रिवाइज कराएंगे, डाउट क्लासेस होंगी, एमसीक्यू टेस्ट होंगे, 20+ आपके टेस्ट होंगे, राइट। तब तो आपकी पढ़ाई होगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, टेस्ट, प्रैक्टिस, आफ्टर क्लास सपोर्ट, क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक जी भर के डाउट्स पूछो। यहां पर आकर कोड डाल दो। कोड क्या है आपको पता होना चाहिए, आपका कोड है VD Pro। डोंट बाय विदाउट द कोड, फिर बाद में ये मत बोलना दैट यू नो माय क्लासेस वर नॉट देयर। तो आपका कोड है VD Pro, डाल दिया आपने कोड, राइट, अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली योर प्राइस विल बी डिक्रीज्ड एंड यू विल बी देयर इन आवर क्लासेस। ये जरूरी लीजिएगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रो मेंबरशिप स्टूडेंट्स। इसके अलावा जाते जाते एक और चीज बता देती हूँ, अभी भी 6 महीने बचे हैं। लास्ट के 2 महीने में पढ़ाई नहीं होती, लास्ट के 2 महीने में सिर्फ रिवीजन होता है बार बार। ये 100 डेज का प्लान है। 100 डेज के प्लान में जिस बच्चे ने नोट्स बनाए वो लास्ट के 2 महीने में बहुत आगे निकल जाएगा। जब आप कुछ राइट करते हो आपकी लर्निंग बेटर होती है। छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दो, राइट। एंड में लगता है इसके नोट ले लो, इस इंस्टीट्यूट के नोट ले लो, नहीं, खुद के नोट से फायदा होता है। लर्निंग इज अ सेल्फ प्रोसेस, शुड बी डन ऑन देयर ओन। ये लास्ट मोमेंट जो एग्जाम के आएंगे ना, 1.5-2 महीने, बहुत हेल्पफुल होंगे। छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू करो। लास्ट के हफ्ते में तो नोट्स ही पढ़ने पड़ते हैं, और लास्ट में जाते जाते सिर्फ एक चीज बता के जाती हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आएंगे।
खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। 20 टेस्ट जिस बच्चे ने दिए वेदांतु में आकर, उसके देखना कितनी इंप्रूवमेंट होगी। आप खुद तो नहीं अफोर्ड कर सकते तो सॉल्व, लास्ट ईयर के 15 साल के पेपर सॉल्व कर डालो। लास्ट 2 मंथ्स रेगुलर हैबिट डालना, हर दूसरे दिन मैंने पेपर सॉल्व करने हैं। 3 घंटे आपने सिर्फ डेली एमसीक्यू सॉल्व करने। पढ़कर उतना फायदा नहीं होता जितना एमसीक्यू सॉल्व करके होता है। करेक्ट आंसर तो ठीक है, गलत क्यों किया उसको रीजन आउट करो, पता लगाओ क्या गड़बड़ की है। राइट एंड बैलेंस। सब अगर पीछे ही पड़ जाओगे पढ़ाई के तो बर्नआउट हो जाओगे, थक जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। कंटिन्यूसली 6 महीने पढ़ना है, बीच में ब्रेक्स लो। प्रिपरेशन प्रोसेस को पेशेंस के साथ करो, शॉर्टकट्स मत मारो। स्लोली स्टेडली इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल आपका संडे है, रिलैक्स करो, टाइम टेबल बनाओ और याद रखो नीट 2022 के लिए वेदांतु बायोटॉनिक पे डेली 2 क्लासेस होती हैं, शाम के 5 बजे और रात के 9 बजे 5 PM 9 PM। डोंट मिस द क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों, बाय। आई विल डू श्रेया KVPY की सीरीज ले आती हूं मैं।